students, this is your Ujjal sir. Today I have come up with a new video on MONERA part 2. तो ये स्टार्ट करने के पहले आप लोग कैसे हो? I think you are all doing well. For those students of class 11 जो आप 2027 में नीट में बैठोगे, I think now you are totally ready with all the warriors. Fine? आपका जो वॉरियर है, वॉर हेड्स है, सब रेडी करके आप बैठे हो. I know that. Still I'm telling you, knowledge is power when you apply it. Fine? Knowledge तब पावर बनेगा जब आप उसको अप्लाई करोगे. मोनेरा कंप्लीट करने के बाद whatever book you have, मैं इस प्लेटफॉर्म में बुक का नाम नहीं बोल सकता आपको, कोई भी बुक आपके पास है, टेक द बुक, स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम मोनेरा. और ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई भी मोनेरा का क्वेश्चंस रुकता है, आप यू आर नॉट बीइंग एबल टू डू इट, देन जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. आई नो दैट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. यू विल बी एबल टू मेक ऑल द क्वेश्चंस करेक्ट. यस, सो लेट्स स्टार्ट विद MONERA, Kingdom MONERA, part 2. That is it. So, this is about Kingdom MONERA. Today's class is on Kingdom MONERA. इसको देखने में कैसा रहता है? How the bacteria looks like. Bacteria किस तरह से वो देखने में लगते हैं? How they look like. So, if this is a bacterial cell, थोड़ा देखो जहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं. क्या ये यहाँ पे? They have got flagella. You can see flagella. They have got flagella. They have got flagella. Now this flagella, ये flagella उसका locomotory organ है. The flagella is a locomotory organ. नीट पे क्वेश्चन आ सकता है, name the protein present inside flagella. Flagella में कौन सा प्रोटीन है? What is the name of the protein present inside flagella? The protein is called flagellin. The protein is called flagellin is the protein present inside flagella. फ्लैजेलम है बिकॉज ये सिंगल है. फ्लैजेला नॉर्मली, इसके बाद वाले टॉपिक में हम जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजेला, हाउ वी कैन क्लासिफाई बैक्टीरिया. लास्ट वीडियो में हम क्या देखे थे? वी हैव क्लासिफाइड बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप इनटू 5 टाइप्स. कॉकस, ओवल शेपेड, गोल गोल, जैसे एग्जांपल डिप्लोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस, pneumococcus. The second, bacillus or rod-shaped, example lactobacillus or bacillus subtilis. The third one is comma-shaped, that is Vibrio cholerae. The fourth one is Spirillum, that is spiral-shaped, and fifth one is spirochete, matlab screw-shaped, and we have given the examples of those. So on the basis of shape हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर लिए थे. If you have missed watching MONERA 1, I will recommend you to MONERA 1 पहले देखकर ये MONERA 2 देखो तो आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिल जाएगा. Okay, so today we are going to talk about the structure of the bacteria. Then inside में बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में क्या क्या है वो समझेंगे. We are also going to talk about their mode of nutrition, mode of reproduction, and then on the basis of bacteria, on the basis of flagella, how we can classify bacteria. चलो, तो ये था flagellum. So flagellum, can you see another structure coming out? And this structure is called pilus. Pilus singular है, in plural it is called pili. Now this pili और flagella में difference क्या है? Flagella एक locomotory organ है, long होते हैं. In other words, if you see in pilus, pili में क्या होता है? They are short, sometimes they are cylindrical. यहाँ पे cylindrical structure दिख रहा है आपको. And the pili they help in anchorage. Fine. Pili में प्रोटीन है, जो प्रोटीन का नाम है pilin. The name of the protein present inside pili is called pilin. Pilin is the name of the protein present inside pili. और ये pili ये नॉर्मली मेल और मेल स्ट्रेन, देखो बैक्टीरिया में तो मेल और फीमेल नहीं कहते हैं, उसमें एक स्ट्रेन रहता है. सो नॉर्मली मेल आर कंसिडर्ड इफ दे आर हैविंग पीली. सो कहते हैं सेक्स पीली. और ये सेक्स पीली एक तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज
कंजुगेशन. सो कंजुगेशन में पीली का फंक्शन हम देखेंगे. नाउ outside cell wall you can see some cell wall slime. So they have got some slimy layer, और ये slimy layer is made up of, the slimy layer is made up of polysaccharide. ये कार्बोहाइड्रेट से बने हुए रहते हैं. They are made up of polysaccharide. So slime के अंदर अगर amino acid रहेगा, अगर amino acid रहेगा, that is what? That is a nitrogenous compound if present on slime, then it is going to become capsule. क्या बन जाएगा? Capsule. So that is the difference between slime and capsule. Now cell wall के composition हम पढ़ेंगे. We are going to talk about the cell wall compositions. Okay, so structure देख लेते हैं. यहाँ पे देखो, they have got a free RNA. They have got a free RNA. और यही free RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, यही फ्री आरएनए कभी कभी ये लार्जर सबयूनिट है, ये स्मॉलर सबयूनिट है ऑफ राइबोसोम. समटाइम्स द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट लाइक दिस, और उसके बीच से जाता है एमआरएनए. बहुत सारे राइबोसोम को कनेक्ट करने के बाद दे आर कॉल्ड एज पॉलीराइबोसोम. सो दे आर कॉल्ड पॉलीराइबोसोम. फाइन. एंड यू नो दिस एमआरएनए व्हेन गेट्स इनसाइड राइबोसोम, वो क्या बनाते हैं? They make protein. What they make protein. तो ये है polyribosome. See, this is the structure of polyribosome. यही यहाँ पे बनाया गया है polyribosome. So basically this is not ribosome. This is polyribosome. Now ये जो ribosome है, इसमें larger subunit रहते हैं. They have smaller subunit. Larger subunit is called 50S. Smaller subunit is called 30S. दोनों को assemble करके जब वो प्रोटीन बनाने के लिए जाते हैं, they make what? They make 70S. That is 70S. In the last video of MONERA, we have talked about what is S. S for Swedberg unit or sedimentation coefficient. So check it out. You have missed the part 1 of MONERA. Okay. Now they have got some lipid granules. You can see there are some lipid granules because ये जो बाहर है स्लाइमी लेयर, देन सेल वॉल, उसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉर्मली सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. दे आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड. सो लिपिड ग्लोब्यूल्स वो अल्टीमेटली सेल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बनाने के लिए काम में आते हैं. Over here you can see this plasma membrane, it contains some of the respiratory enzyme. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं, और ये एंजाइम्स किस में हेल्प करते हैं? ये एंजाइम्स रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, सो दैट बैक्टीरिया कैन वर्क. बैक्टीरिया को काम करने के लिए क्या चाहिए? बैक्टीरिया को काम करने के लिए एटीपी चाहिए. एटीपी चाहिए, और ये एटीपी के लिए रेस्पिरेटरी एंजाइम्स चाहिए. एंड this plasma membrane sometimes they show invaginations, and they make what? They make mesosomes. They make mesosomes. और ये mesosomes हम बात किए थे in the last class that bacteria के पास सेल ऑर्गेनेली नहीं है. क्या क्या नहीं है? They don't have mitochondria, they are not having Golgi bodies, they are not having lysosomes, but they have only ribosome. They have got only ribosome. So mitochondria का function करता कौन है यहाँ पे? Mesosomes. So mesosomes basically they help in what? They help in DNA replication, and also they help in cellular respiration. Now, what is this? This is nucleoid circular DNA. ये रहा nucleoid circular DNA. Circular DNA है. जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है वो circular DNA है. That is circular DNA. Double-stranded circular DNA. And they have got plasmid. Let me find out. I think plasmid is being given. Plasmid. This is glycogen. Plasmid is over here. This is plasmid. So this is plasmid. ये जो plasmid है, in the last class I have talked about कि biotechnology class 12 के biotechnology topic में we are going to understand कि बैक्टीरिया से plasmid को बाहर निकाला जाता है, and it is being cut by restriction endonuclease enzyme. So the scissor, molecular scissor, can cut the plasmid from a specific point. एक पॉइंट से काट सकते हैं, और वो स्पेसिफिक पॉइंट क्या है? The specific point is called palindromic sequence. So we are going to go in details जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, but ये प्लास्मिड को बाहर
निकालने के बाद वी कैन परफॉर्म सम डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, और उसमें क्या कर सकते हैं हम, वी कैन ऐड द टाइप ऑफ प्रोटीन दैट वी वांट टू मेक। जो हमारे लिए जो जीन इंपॉर्टेंट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम काट के प्लास्मिड के साथ लगा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ग्लू कॉल्ड डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो ये जो प्लास्मिड है, इस प्लास्मिड का फंक्शन कहां पे है, इस प्लास्मिड में क्या है, द प्लास्मिड कंटेन्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट। Sometimes this plasmid contains NIF gene, NIF gene. Sometimes it contains NIF gene. What is NIF gene? Nitrogen fixation gene. NIF gene रहते हैं sometimes inside the plasmid. ये plasmid हम देखेंगे in the topic sexual reproduction in bacteria under conjugation। हम देखेंगे प्लास्मिड का एक कॉपी एक बैक्टीरिया रखने के बाद उसका और एक कॉपी वो पास वाले बैक्टीरिया के अंदर वो इंसर्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। सो द होल बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है जो आज से 3.5 बिलियन साल पहले, द फर्स्ट लाइफ वाज व्हाट, द फर्स्ट लाइफ वाज बैक्टीरिया। नाउ ये बैक्टीरिया, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे हैं कि साइनोबैक्टीरिया प्रिमिटिव है या बैक्टीरिया प्रिमिटिव है। डेफिनेटली साइनोबैक्टीरिया प्रिमिटिव है। साइनोबैक्टीरिया क्या किए थे पहली बार, जो हमारे 3.5 बिलियन ईयर्स अगो द अर्थ वाज हैविंग व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, वहां पे फ्री ऑक्सीजन नहीं था, आवर अर्थ वाज नॉट हैविंग फ्री ऑक्सीजन। तो वो फ्री ऑक्सीजन नहीं था, तो वहां पे ऑक्सीजन लाया कौन, ऑक्सीजन लाया कौन। So as because our atmosphere was reducing atmosphere, what is the meaning of reducing atmosphere? That means there were no free oxygen, no free O2, diurnal oxygen नहीं था, so it was not there। तो पहली बार, और तब टेम्परेचर कितना था, द फर्स्ट लाइफ जब बना द टेम्परेचर वाज क्लोज टू 800 डिग्री सेल्सियस। कब, 3.5 बिलियन साल पहले। फाइन, इन दैट केस उस समय ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ग्रीन मतलब दे हैव गॉट सम बैक्टीरियोक्लोरोफिल, बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोक्लोरोफिल उन्होंने ये क्या बनाना स्टार्ट कर दिए, दे हैव स्टार्टेड मेकिंग व्हाट, ऑक्सीजन, बाय फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड, in presence of the chemical reaction you already know, water, light and chlorophyll, they have made C6H12O6 plus 6O2, ये ऑक्सीजन लिबरेट हो गया, plus water, along with water। So this oxygen जो ये लिबरेट किए, the same oxygen made the atmosphere, the primitive atmosphere as oxidizing। So reducing से क्या बना दिया, reducing से oxidizing atmosphere बन गया, oxidizing atmosphere बन गया। So उसके बाद सोचो हर एक ऑर्गेनिज्म में, आज हम अपने लंग्स से क्या लेते हैं, नॉर्मली हमारे लंग्स में कौन सा ऑक्सीजन जाता है, द फ्री ऑक्सीजन इज बीइंग एक्सचेंज्ड, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए लंग्स फॉर्म हुआ। जब वो पानी में था इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, तब रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या था उनमें गिल्स थे। सो ये इवोल्यूशन वहां से स्टार्ट हुआ। सी फॉर एग्जांपल, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्टीरिया का मेन फंक्शन क्या था, one of the bacteria which is called blue green algae, they made the reducing atmosphere into oxidizing atmosphere, ताकि बहुत सारे organisms इस अर्थ में थ्राइव कर पाए। Okay, now let us get into the details that we have covered in the very last class। थोड़ा सा देख लो, ये थोड़ा सा आपके लिए एक स्टेप अहेड जा रहे हैं। This topic we have already covered। We have classified bacteria on the basis of what? Shape. On the basis of shape. So number one, bacteria को classify किया on the basis of shape. The first one is coccus or oval. Oval मतलब गोल गोल। Example, Diplococcus pneumoniae. Pneumonia causing bacteria is one of the example. Bacillus or rod shaped, they are rod shaped. Example, Lactobacillus. Okay, Vibrio or comma shaped, they are comma shaped. Example, Vibrio cholerae, which causes cholera.
देन स्पाइरलम और हेलिकल, स्पाइरलम और हेलिकल एग्जांपल रोडोस्पाइरलम, और एक एग्जांपल मैं लास्ट दिन दिया था वो था स्पाइरोकीट, उसका एग्जांपल क्या था? ट्रिपोनिमा पैलिडम, ट्रिपोनिमा पैलिडम। यही टॉपिक ट्रिपोनिमा पैलिडम के बारे में क्लास 12 में पेज नंबर 184 में सिफिलिस, सिफिलिस क्या है? एसटीडी, इट्स अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वो कॉज करता है। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट part is we can classify bacteria on the basis of flagellum, on the basis of flagellum. So number of flagella के ऊपर डिपेंड करके नंबर 1 है Atrocious. So what is the first type? Atrocious. ये Tricus नाम कहां से आया? The name of Tricus, the term has come from trichology. And what is trichology? The study of hair is called trichology. Now Atrocious मतलब कोई हेयर नहीं है, देखो गंजा बैक्टीरिया है, ये गंजा बैक्टीरिया है तो क्या है? मोनोकॉकस, मोनो मतलब सिंगल, कॉकस सिंगल कॉकस। मोनोट्रिकस, मोनो मतलब सिंगल है, ट्रिकस मतलब हेयर है, दैट मींस दे हैव ओनली वन हेयर। थिंक अबाउट बैक्टीरिया का एक ही हेयर है उसके बॉडी में। एग्जांपल विब्रियो कॉलोनी, दैट इज कॉलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया। एम्फीट्रिकस, एम्फी मतलब बोथ, एम्फी मतलब बोथ, दोनों साइड पे एक एक करके है एम्फीट्रिकस। एग्जांपल नाइट्रोजोमोनस, ये नाइट्रोजोमोनस किस तरह का बैक्टीरिया है? ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। ये क्या है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजोमोनस। फाइन, देन सेफालोट्रिकस, सेफालोट्रिकस। अच्छा, सेफालोट्रिकस मतलब एक साइड में एक गुच्छे हैं, देयर इज अ tuft of, there is a tuft of flagella present on one side of the bacteria, Roshbet bacteria या bacteria. Example, C square, किस तरह से याद रखना है? C square. And what is C square? It is called Corynebacterium diphtheriae. Corynebacterium diphtheriae. So Corynebacterium, C square क्यों? C for Cephalotricus and C for Corynebacterium diphtheriae, which causes diphtheria, which causes the disease called diphtheria. लोफोट्रिकस मतलब अगर ये बैक्टीरिया है, दोनों तरफ ऐसे टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है, गुच्छे ऑफ फ्लैजेला है। देखो इधर एक साइड में था इन सेफालोट्रिकस और लोफोट्रिकस में दोनों साइड पे है। एग्जांपल इज सैल्मोनेला टाइफी व्हिच कॉजेस टाइफॉइड डिजीज। कम नाउ टू पेरिट्रिकस। पेरी मतलब क्या है? If this is a bacteria, the bacteria is having flagella all side, peripheral part में है। An example is E. coli bacteria, Escherichia coli bacteria. Yes, my dear students, expect this kind of questions in NEET next year. Yes. How many of you are feeling out of the NCERT? Yes, rightly said. I'm with you. इतना नॉलेज बढ़ाओ ताकि इतना सा जगह से क्वेश्चन आता है, यू आर रेडी। फाइन, यस। एनसीईआरटी को भूलना नहीं है, एनसीईआरटी को एक एक लाइन पढ़ना है, एंड द इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग राइट नाउ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन यू आर हैविंग ऑल द वॉरहेड्स टू फाइट। ओके, सो दैट इज इट। सो ये था नंबर ऑफ फ्लैजुलर के ऊपर डिपेंड करके बैक्टीरिया को कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ देयर इज there is a particular relationship between bacteria and fungus. एक तरह का रिलेशनशिप है विद बैक्टीरिया एंड फंगस, और वो रिलेशनशिप क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, द पर्सन नेम इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये क्लास 12 में है आपके। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज अ साइंटिस्ट हु वाज वर्किंग ऑन अ बैक्टीरिया, ही वाज कल्चरिंग अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। इसका नाम क्या है? स्टैफाइलोकोकस, स्टैफाइलोकोकस ऑरियस, स्टैफाइलोकोकस ऑरियस। न्यू बुक क्लास 12 में, न्यू बुक में पेज नंबर 152, एंटीबायोटिक टॉपिक, एंटीबायोटिक टॉपिक। इफ यू आर इन क्लास 12, अगर आप क्लास 11 में हो, आई हैव सजेस्टेड यू टू जस्ट गो एंड बाय दिस क्लास 12 बुक। उसमें एंटीबायोटिक टॉपिक में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग he was making a culture on this bacteria called Staphylococcus aureus, और ये न्यूट्रिएंट मीडियम था, ये ग्रो कर रहा था। सडनली ही फाउंड दैट एक जगह पे कुछ बैक्टीरिया है जो ग्रो नहीं कर रहे थे, एंड ही फाउंड दैट माइक्रोस्कोप दे हैव सम फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, और वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर असल में था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम ये फंगस है,
और ये फंगस एक्सीडेंटली जब इस कल्चर प्लेट में गिर गया एंड उसका स्पोर गिर गया, दे स्टार्टेड मेकिंग सम व्हाट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एडल्ट बॉडी पर स्टार्ट हो गया बनना। बट जहां पे वो बनते हैं वहां पे वो सिक्रीट करते हैं एक तरह का एंटीबायोटिक जो केमिकल, उसका नाम है एंटीबायोसिस। दे स्टार्टेड रिलीजिंग अ केमिकल कॉल्ड एंटीबायोसिस। कौन है ये? पेनिसिलियम नोटेटम। ये पेनिसिलियम नोटेटम जहां पे वो ग्रो करेंगे वो कोई भी लाइफ को थ्राइव करने नहीं देंगे। दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ एनी लाइफ टू फॉर्म। सो वो बैक्टीरिया को मार दिए। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, one is species A and one is species B. तो species A है फंगस और बैक्टीरिया का रिलेशनशिप क्या हुआ? फंगस के कारण बैक्टीरिया मर गया, नेगेटिव, और फंगस के पास कोई आइडिया ही नहीं था, उसके कारण कोई मारा गया। This kind of relationship between fungus and bacteria is called amensalism. Class 12, page number 232 old book. 232 old book. You see, there is a table, और इस टेबल में species A और species B के बारे में बताया गया है, and the last topic was about amensalism. Even in class 12, the explanation, the example is not being given, और वही example आपके पेज नंबर 152 में, ये न्यू बुक में है, और पेज 182 इन ओल्ड बुक में ये टर्म दिया गया है एंटीबायोटिक। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड बैक्टीरिया। सो हम क्या बोले थे द डे फर्स्ट इन द पावर बैच कि टोटल इंटीग्रेटेड लर्निंग करेंगे। एक भी टॉपिक अगर क्लास 11 में हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग टू कवर 11 एंड 12 में कहां पे बैक्टीरिया का इंफॉर्मेशन है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस आइडिया। Now, this is about Alexander Fleming and how antibiotic is related with bacteria. Let us get into the next called mode of nutrition. On the basis of mode of nutrition, we can classify bacteria into two. एक है autotrophic और एक है heterotrophic. एक है autotrophic और एक है heterotrophic. अब ये autotrophic bacteria means auto means what? Self. So they can make their own food. So there are two different types. One is photoautotrophic and one is chemoautotrophic. Photoautotrophs or chemoautotrophs. Photoautotrophs, in presence of light, they can make their own food. So ये था chemical reaction. यहाँ पे देखो water टूट गया. Water टूटने के बाद क्या रिलीज हुआ? ऑक्सीजन रिलीज हुआ. So ये क्या प्रोसेस था? ऑक्सीडेशन प्रोसेस था. और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड में किसको ऐड किया गया? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन इज बीइंग एडेड, तो ये हो गया रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? वी नॉर्मली नो अ केमिकल रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, वी कॉल देम एज रिडॉक्स रिएक्शन। सो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और यहां पे देखो वाटर टूटने के बाद ऑक्सीजन लिबरेट हुआ। इन केस ऑफ केमोऑटोट्रॉफ्स, वो भी खाना बनाएंगे पर किसका हेल्प नहीं लेंगे? वो लाइट का हेल्प नहीं लेंगे। वो क्या करेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड को तोड़ेंगे इन प्लेस ऑफ वाटर। तो हाइड्रोजन सल्फाइड टूटेगा तो ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगा। तो दिस काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड एनऑक्सीजेनिक। क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? दे आर कॉल्ड एनऑक्सीजेनिक, जो ऑक्सीजन लिबरेट नहीं करते हैं पर खाना बनाते हैं अपने लिए। दे आर कॉल्ड केमोऑटोट्रॉफ्स। The next one is heterotrophic. Heterotrophic बैक्टीरिया मतलब जो बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाना के लिए, अपने फूड के लिए. So they are mainly pathogens. They are mainly disease causing. Pathogens मतलब pathos plus agents. The agents which create pathos and pathology मतलब the study of disease. मतलब pathos मतलब disease. The agents which can create disease are called pathogens. So that is also very, very important. Come down to photoautotrophs का example. Photoautotrophs मतलब जो अपना खाना बनाते तो हैं, but they make their food in presence of light. Example is green sulfur bacteria, that is chromatium. Green sulfur bacteria, the name of the example is chromatium. Chromo मतलब क्या है? Color. So green sulfur bacteria. Iron sulfur bacteria is chlorobium. क्या नाम है? Chlorobium is iron sulfur bacteria. That is also an example of
फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। बोलो माय डियर स्टूडेंट्स, याद करना नहीं करना है ये आपके ऊपर है। नीट का इस साल एग्जाम पेपर देखने के बाद आई थिंक यू शुड बी हाईली एक्साइटेड टू नो दिस थिंग। ओके, नाउ ये था अबाउट द फोटो ऑटोट्रॉफ एग्जाम्पल, केमो ऑटोट्रॉफ्स। जब हम केमो ऑटोट्रॉफ्स के बारे में बात करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट द नाइट्रोजन साइकिल। क्लास 9 में आई थिंक यू हैव स्टडीड अबाउट बायोजियोकेमिकल साइकिल, उसमें नाइट्रोजन साइकिल था। नाउ ये नाइट्रोजन साइकिल में हम जानते हैं एयर में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन प्रेजेंस कितना परसेंट है? 78% इन एटमॉस्फेयर। और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है 3 डिफरेंट प्रोसेस से। नंबर 1 इज इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्री में नाइट्रोजन को फिक्स करना किस प्रोसेस से? हेबर्स प्रोसेस से। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन को बाइंड करो और क्या बनाओ? N2+3H2 2NH3। और ये इंडस्ट्रियल फिक्सेशन हो गया, सो एमोनिया बन गया। क्या बन गया? NH3 बन गया। सेकेंड, हम नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बाय बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब ये जो रूट नोड्यूल है पी प्लांट में, दे हैव गॉट रूट नोड्यूल। इन द पी प्लांट दे हैव गॉट नोड्यूल्स। नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम लेग्यूमिनोजारम। रिमेंबर निव नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, राइजोबियम लेग्यूमिनोजारम। ये लेगुमिनस प्लांट में ये बैक्टीरिया राइजोबियम, उसका काम क्या है? उसका काम है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज करके नाइट्राइट और नाइट्रेट में चेंज करना। नाइट्राइट और नाइट्रेट में चेंज करना। सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में चेंज करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ राइजोबियम लेगुमिनोजारम। When we talk about the last one, किस तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, वो थर्ड स्टेप है एटमॉस्फेरिक और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेयर में ये जो डायटोमिक नाइट्रोजन है और डायटोमिक ऑक्सीजन है N2+O2, वो 10,000 डिग्री सेल्सियस में NO2 बनाते हैं। NO2 बनाते हैं। Once NO2 is formed, NO2 से क्या बन जाएगा? NO2 से बनेगा nitrate and ultimately they are going to get absorbed by the green plants. So ये था। और ये 10,000 डिग्री सेल्सियस कहां से बनेगा एटमॉस्फेयर में? ड्यू टू लाइटनिंग। जो लाइटनिंग होता है उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके NO2 बनाते हैं। There are 3 main process of fixation of nitrogen. Another one is what? Nitrifying bacteria. What is nitrifying bacteria? N2 को नाइट्राइट में चेंज करना, उसके बाद नाइट्रेट में चेंज करना। यहां पे बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोजोमोनस, ये बैक्टीरिया है। और यहां पे बैक्टीरिया का नाम है नाइट्राइट से नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर। माय डियर स्टूडेंट, कॉपी सामने रखो और लिखते रहो। फाइन। सो माइंड यू, नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ पेस, इसलिए इतना अच्छा हैंडराइटिंग से नहीं लिखा जा रहा है बाबू, थोड़ा देख लेना। N2 से NO2 नाइट्रोजोमोनस, NO2 से NO3 नाइट्रोबैक्टर, एंड अल्टीमेटली these 2 types of bacteria are called nitrifying bacteria. अब हम क्या जानते हैं? Nitrite and nitrate is being absorbed by green plants, is absorbed by the green plants. So अगर ये green plant है, so green plant are going to absorb in the form of nitrites and nitrates. These two will be absorbed by green plants. So green plant की बॉडी में चला आया नाइट्रोजन। ग्रीन प्लांट्स को खाएगा कौन? एनिमल्स आर गोइंग टू फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स। दोनों का लाइफ स्पैन खत्म होगा, वो मारे जाएंगे एंड उनके अंदर जो नाइट्रोजन है, दैट नाइट्रोजन विल बी अगेन एमोनिया में ट्रांसफर करेगा कौन? एमोनिफाइंग बैक्टीरिया। और इसका एग्जाम्पल क्या है? बैसिलस रामोसस एंड बैसिलस सबटिलिस। बैसिलस रामोसस एंड बैसिलस सबटिलिस is the example of ammonifying bacteria. Ammonifying bacteria से फिर से ये नाइट्राइट, फिर से नाइट्रेट, ये दोनों एब्जॉर्ब होकर ग्रीन प्लांट्स, ये साइकिल स्टार्ट हो गया कंप्लीट। Now this is the cycle which goes on and on. पर अब क्या होगा? एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन था,
उसको बैलेंस करना है, तो ये ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स मर जाने के बाद उनसे अगेन अमोनिया फॉर्मेशन कर देना या उनसे अगेन नाइट्रोजन कंटेंट को बाहर निकाल देने को क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन. व्हाट इट इज कॉल्ड एज? Denitrification. And the bacteria which helps in this process is called denitrifying bacteria. Denitrifying bacteria. और ये denitrifying bacteria का एग्जाम्पल मेनली दो है. एक है Theobacillus, one is Theobacillus, ये बैक्टीरिया का नाम है, और एक है Pseudomonas denitrificans. Pseudomonas denitrificans. This is the name of the bacteria. तो ये Pseudomonas bacteria बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है माय डियर स्टूडेंट्स. इन 1991 गल्फ वॉर वहां पे ऑयल स्पिलेज हो गया था. ऑयल स्पिलेज आ गया था कहां पे? पानी में. सो वो सी था, सी में इतने मोटे मोटे लेयर में क्या था? ऑयल था, क्रूड ऑयल. तो उस क्रूड ऑयल को कैसे, हाउ वी आर टू मेक द वाटर फ्री फ्रॉम दिस ऑयल इज ओनली बाय बर्निंग इट. अगर उसको बर्न करेंगे तो इतने बिलियन गैलन्स वहां पे ऑयल स्पिलेज हुआ था ड्यू टू द वॉर. तो तब यूनेस्को आ गए थे, वो बोले थे कि डोंट लीड दिस बिकॉज इतने सारे फ्यूम्स बनेंगे, उससे पूरा एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा. तो तब ये बैक्टीरिया Pseudomonas, ये नॉर्मली किस तरह का, इसका और एक क्वालिटी है, दे आर कॉल्ड एज प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया. प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया मींस दे फीड ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. अगर आप वेसलिन जो है उसमें अगर प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया दे दोगे तो आप देखोगे 2 दिन के बाद उसमें वेसलिन नहीं है, पूरा खा लेंगे कौन? Pseudomonas. So this was the way that normally नेचुरल प्रोसेस में गल्फ वॉर में वो क्रूड ऑयल को खा लिया ये बैक्टीरिया. सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ दिस Pseudomonas बैक्टीरिया. ये टोटल जो हम बताए अभी आपको, ये सब क्या था? केमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया था. केमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. सो नाउ द नेक्स्ट वन इज अबाउट, सो दिस इज व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट. ओके, रूट नोड्यूल्स में, ये रूट नोड्यूल्स में क्या रहते हैं? रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं. राइजोबियम बैक्टीरिया कब काम करेंगे? एक एंजाइम है, द नेम ऑफ द एंजाइम व्हिच हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज नाइट्रोजिनेज. नाइट्रोजिनेज एंजाइम कभी भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं करते हैं, एंड दैट इज व्हाई रूट नोड्यूल के अंदर एक पिगमेंट रहता है, पिंक कलर का पिगमेंट, एंड द नेम ऑफ द पिगमेंट इज लेग हीमोग्लोबिन. लेग हीमोग्लोबिन एक्ट्स एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर. तो ये क्या करेंगे? ये ऑक्सीजन को सोक कर लेंगे, वहां से ऑक्सीजन को हटा देंगे ताकि नाइट्रोजन इज गोइंग टू वर्क एंड इट कैन हेल्प इन मेकिंग व्हाट? इट कैन हेल्प इन मेकिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाउ थिंक अबाउट इट. ये जो बैक्टीरिया है ये कहां पे है? रूट के नोड्यूल में. इसका और एक एग्जांपल बनता है सिम्बायोसिस, क्लास 12 बुक, पेज नंबर 232, ओल्ड बुक. उसमें जैसे अभी आपको एमेंसेलिज्म कहा गया था, there is another relationship between two organisms, and over here the two organisms are having positive. Both of them are mutually being benefited. When both the organisms, जब दोनों organism mutually benefited होते हैं, we call this relationship which is obligatory, strictly एक दूसरे के बिना मर जाएंगे. This obligate relationship is called symbiosis. अब सोचो ये symbiosis में यहां पे राइजोबियम और रूट नोड्यूल्स के केस में था. अब देयर आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. तो ये था सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. सो कुछ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो इस साल नीट में आया है ऑप्शंस में कि ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये कौन है. जैसे एजोटोबैक्टर, ये एक ऑप्शन में था. नीट 2025 में देयर वाज अ क्वेश्चन नेम्ड एजोटोबैक्टर. एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग है, वो किसी के साथ नहीं रहता है, बट दे कैन हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. एंड दे आर कॉल्ड ऑब्लिगेट एरोब्स, मतलब ऑक्सीजन के बिना वो काम नहीं कर पाएंगे. ओके, और ये कौन था? नाइट्रोजन एंजाइम ऑब्लिगेट एनारोब्स. ऑब्लिगेट मतलब क्या? स्ट्रिक्टली, वो स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन के बिना काम, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही वो काम कर पाएंगे. उसका नाम है ऑब्लिगेट
and aerobes. Example is nitrogenase enzyme. So ये अभी मैं आपको ये दिखाया था, the nitrogen cycle. The nitrogen cycle just now I have given you this idea. Ammonia से nitrite, nitrite से nitrate, ये दोनों absorb हो गए. अमोनिया से नाइट्राइट चेंज किया कौन? नाइट्रोसोमोनस. नाइट्राइट से नाइट्रेट कौन चेंज किया? नाइट्रोबैक्टर. ये दोनों को लेकर क्या कहते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. नाइट्राइट एंड नाइट्रेट आर एब्सॉर्ब्ड बाय ग्रीन प्लांट्स. दे आर ग्रीन प्लांट्स बीइंग फेड बाय एनिमल बायोमास. ये दोनों जब लाइफ टाइम कंप्लीट हो जाएगा वो मर जाएंगे. द होल बॉडी डिकम्पोज एंड अल्टीमेटली एम्प्लीफाइंग बैक्टीरिया उसके बॉडी से नाइट्रोजन को लेकर अमोनिया में चेंज कर देंगे. तो ये साइकिल कंप्लीट हुआ. The name of the example of amplifying bacteria are Bacillus ramosus, Bacillus subtilis, Bacillus mycoides. Bacillus mycoides. Mind you, देखो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था नीट में. सो ये एजिडोबैक्टर कहां से दे दिया? एजिडोबैक्टर कहां से आया फिर? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू गो आउट ऑफ द बॉक्स. आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा. तो फाइन. ये देखो गल्फ वॉर के बारे में कहा था. स्यूडोमोनास गल्फ वॉर में यूज किया 1991 में. स्यूडोमोनास पुटिडा. स्यूडोमोनास पुटिडा. पुटिडा मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट को वो खाते हैं. और ये है डिनाइट्रेटेड बैक्टीरिया. नाम है थियोबैसिलस डिनाइट्रिफिकस. थियोबैसिलस डिनाइट्रिफिकस. ओके. स्यूडोमोनास पुटिडा, पेट्रिफाइंग बैक्टीरिया. So that was it. Let's get into. So that was all about what? Mode of nutrition. Let's get into the mode of reproduction. The reproduction can be asexual and sexual. Asexual में कोई variation नहीं रहेगा. That can be that can occur by the help of what? Binary fission या spore formation. Binary fission or spore formation. Compared to sexual जो variation need करता है. Last video I have talked about conjugation discovered by Liederberg and Notatum 1946 में. Transformation Frederick Griffith और 1924 में. और ट्रांसडक्शन डिस्कवर्ड बाय जिंगर एंड लीडरबर्ग. सो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था. दिस वाज अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द प्रोसेस हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स. पहला क्या था? द फर्स्ट वन वाज कंजुगेशन, डिस्कवर्ड बाय लीडरबर्ग एंड टैटम. डिस्कवर्ड बाय लीडरबर्ग एंड टैटम इन द ईयर 1946. अब ये कंजुगेशन कैसे होता है? ये बैक्टीरिया है एंड द बैक्टीरिया इज हैविंग प्लास्मिड. द बैक्टीरिया इज हैविंग प्लास्मिड एंड दे हैव गॉट व्हाट? सेक्स पिली. दे हैव गॉट सेक्स पिली. और ये और एक बैक्टीरिया है तो इसके पास प्लास्मिड है, इसलिए इसको कहते हैं F प्लस सेल. इसको कहते हैं डोनर. क्या कहते हैं? दे आर डोनर एंड दिस इज रेसिपिएंट. इसके पास क्या नहीं है? इसके पास प्लास्मिड एब्सेंट है. सो वी कॉल इट F माइनस सेल. दोनों ये डिफरेंट स्ट्रेन के हैं. सो पास आएंगे और उनमें दोनों में क्या बनेगा? कॉन्जुगेशन ट्यूब. व्हाट इज गोइंग टू गेट फॉर्म? कॉन्जुगेशन ट्यूब इज गोइंग टू फॉर्म इन. और ये कॉन्जुगेशन ट्यूब से के अंदर से क्या होगा? दिस पर्टिकुलर पिली जो प्लास्मिड, दिस इज प्लास्मिड. ये प्लास्मिड अपना एक कॉपी यहां पे रखकर और एक कॉपी यहां पे भेज देगा. एंड दिस वन इज गोइंग टू हैव द F माइनस इज गोइंग टू हैव प्लास्मिड. तो यहां पे F minus is not going to remain as F minus, it is going to become F plus. तो हो गया ना वेरिएशन. This was यहां पे देखो whole set of plasmid is being copied and transferred. यहां पे इसका एक फुल कॉपी. अगर ये बुक है, पूरा बुक का आपने फोटोकॉपी बनाया और पूरा बुक को कॉपी करके दे दिया. ये था conjugation में. What is the next process? Transformation. The next process is transformation. It was discovered by Frederick Griffith. According to transformation, only some part of the DNA gets transferred from one bacterium to the other. Conjugation में क्या हुआ था? The whole set of the DNA was transferred. But in case of transformation, only one part of the DNA gets transferred. So transformation was given by Frederick Griffith. In class 12, under the chapter Molecular Basis of Inheritance, page number 100, old book, NCERT. You can see, normally we know that pneumonia causing bacteria, pneumonia disease है. Pneumonia causing bacteria का नाम क्या है? It can be Diplococcus or Streptococcus pneumoniae. Diplococcus pneumoniae या Streptococcus pneumoniae. It causes what? It causes
न्यूमोनिया। और न्यूमोनिया कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? इट अफेक्ट्स लंग्स। सो फ्रेडरिक ग्रिफिथ व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटेशन विद दिस काइंड ऑफ बैक्टीरिया। वो इस बैक्टीरिया को लेकर माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। सो ही टुक अ माइस, इंजेक्टेड विद दिस काइंड ऑफ बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है न्यूमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया या डिप्लोकॉकस न्यूमोनियाई या स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनियाई, ये बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं। दीज बैक्टीरिया आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। वन इज आर स्ट्रेन एंड वन इज एस स्ट्रेन। R strain and S strain. What is R stands for? R stands for rough. अगर ये कॉकस बैक्टीरिया उसका सेल वॉल रफ है, the cell wall is rough due to the absence of, rough क्यों हुआ? Due to absence of mucopolysaccharide. ये एब्सेंस हो गया तो ये रफ हो गया, सेल वॉल रफ हो गया। But what is S stands for? S stands for smooth. That means if you have bacteria, this bacteria is having smooth lining of mucous slimy layer of mucopolysaccharide, and this smooth layer can make the bacteria virulent. Virulent मतलब disease causing. So कौन disease बना सकता है? Disease बना सकता है कौन? S strain. So कौन harmful है? S strain. कौन disease नहीं बना पाएगा? Due to the lack of mucus, सेल वॉल के बाहर म्यूकस। तो आर स्ट्रेन है नॉन वायरुलेंट। आर स्ट्रेन इज नॉन वायरुलेंट। सो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया? फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक माइस लिए, ही इंजेक्टेड फर्स्ट दिस माइस विद द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही डिड, ही इंजेक्टेड दिस माइस विद आर स्ट्रेन। यस, टेल मी माय स्टूडेंट्स, अगर आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया जाएगा, आर स्ट्रेन वायरुलेंट है या नॉन वायरुलेंट? नॉन वायरुलेंट। दैट मींस इट इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू मेक एनी डिजीज। सो द माइस सर्वाइव्स। माइस क्या होगा? माइस सर्वाइव कर जाएगा बिकॉज इज नॉट गोइंग टू डाई आउट ऑफ न्यूमोनिया। ही टुक अनदर माइस, इंजेक्टेड द माइस विद ए स्ट्रेन। ए स्ट्रेन से इंजेक्ट किया तो माइस मर जाएगा। द माइस डाइज आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ न्यूमोनिया, बिकॉज ए स्ट्रेन वायरुलेंट है, ए स्ट्रेन इज डिजीज कॉजिंग है, इट इज वायरुलेंट इन नेचर। And third, what he did, he took a mice, injected the mice with R strain plus, he took a mice and injected heat-killed S strain. Heat-killed S strain. What is the meaning of heat-killed? अगर एस्ट्रेन को लेकर आप हीट किल करोगे तो उसका जो स्मूथ कवरिंग है वो नष्ट हो जाएगा। सो इफ द स्मूथ म्यूकस गेट्स डिस्ट्रॉयड, तो हीट किल्ड एस्ट्रेन से उसका जो वायलेंसी प्रॉपर्टी है, द वायलेंसी प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बिकम डिस्ट्रॉयड और वो हो जाएगा नॉन वायलेंट। सो द माइस सर्वाइव्स। माइस क्या हो जाएगा? मरेगा नहीं बाय न्यूमोनिया। इट्स नॉट गोइंग टू डाई आउट ऑफ न्यूमोनिया। So ये हीट किल्ड एस्ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी को बाद में हम पढ़ेंगे, कॉल्ड एटीन्यूएशन। व्हाट इज एटीन्यूएशन? अगर कोई भी जर्म को हम हीट करके किल कर ले तो वो जर्म में डिजीज कॉजिंग जो प्रॉपर्टी है वो नष्ट हो जाएगा। एंड दिस इज द बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन। दिस इज द बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन। सो एटीन्यूएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है? वही बैक्टीरिया को हमारे बॉडी में दिया जाता है। से फॉर एग्जांपल, यू नो अबाउट अ वैक्सीनेशन कॉल्ड डीपीटी, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस। ये वैक्सीनेशन मतलब यही बैक्टीरिया जो डिप्थेरिया कॉज करता है, टिटेनस पर्ट्यूसिस कॉज करता है और टिटेनस कॉज करता है, वही बैक्टीरिया को हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। पर उसके पहले इंजेक्ट करने से तो क्या हो जाएगा? हमें डिजीज हो जाएगा। सो उसके पहले दीज बैक्टीरिया आर बीइंग हीट किल्ड। Fourth, he took what? Frederick Griffith took a mice injected with, देखो यहां पे injected with heat-killed estrine, heat-killed estrine, and he added that with R strain. R strain और heat-killed estrine दोनों ऐड करके इंजेक्ट किया गया। The moment दोनों ऐड करे इंजेक्ट किया गया, what is going to happen?
हीट किल्ड स्ट्रेन इंडिविजुअली बचाता है, रफ स्ट्रेन इंडिविजुअली बचाता है, बट दोनों को ऐड करने के बाद जब इंजेक्ट किया गया द माइस डाइज। ये हो गया कहानी में थोड़ा ट्विस्ट। क्या हो गया? हाउ द बैक्टीरिया डाइज। इसका रीजन देखा गया, क्या हीट किल्ड स्ट्रेन को जब आप बाहर से हिट किए थे उसका डीएनए चेंज नहीं हुआ था, उसका मॉर्फोलॉजी चेंज हुआ था, उसका बाहर का जो स्ट्रक्चर है मॉर्फोलॉजी वो चेंज हुआ था, डीएनए चेंज नहीं हुआ था। हीट किल्ड स्ट्रेन को जब आप दूसरे बैक्टीरिया के प्रेजेंस में रख दिए, द हीट किल्ड स्ट्रेन्स डीएनए हैज ट्रांसफॉर्म द डीएनए ऑफ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। उसको ट्रांसफॉर्म करके क्या बना दिया? ट्रांसफॉर्म करके एस स्ट्रेन बना दिया। आर स्ट्रेन हैज नाउ चेंज इनटू एस स्ट्रेन। मतलब अगर जो दो पास बैक्टीरिया को रखोगे, one bacteria DNA, one part of the DNA of the bacteria can change the other bacteria's DNA by what process? Transformation. इसी के कारण ये rough strain has now changed into S strain and the mice dies. यही टॉपिक आप पढ़ोगे क्लास 12 में under transformation. This is very very important. Hope you have understood this. इसके बाद भी 3 साइंटिस्ट इसको लेकर रिसर्च किए and they have discovered it is the DNA which is the main genetic material. Fine, we can go on and on, पर वीडियो को प्रोग्राम नहीं करूंगा। तीनों साइंटिस्ट का नाम आई एम वेटिंग फॉर यू टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। 3 साइंटिस्ट का नाम क्या है? 1944 में, 1924 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। 1944 में these 3 scientists they came into conclusion by the help of Frederick Griffith's last experiment. They came into conclusion that what is the main genetic material? Is it DNA, which is the main genetic material, or RNA, or protein? Fine. Comment me in the comment section. If you are watching this video, comment me in the comment section. I'm waiting for that comment. Now, the last one is transduction. The last one is transduction. Now, transduction, ये क्या है? Transduction is also a type of sexual reproduction in bacteria, and there, in this case, by the help of a virus named bacteriophage. ये वायरस है। ये वायरस के हेल्प से बैक्टीरिया के डीएनए में चेंज लाना। सम पोर्शन ऑफ द डीएनए इज चेंज्ड बाय द हेल्प ऑफ वायरस, बाय द हेल्प ऑफ वायरस फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर। वायरस चेंज कर रहा है। अगर वो बैक्टीरियोफाज है, इफ दिस इज अ बैक्टीरियोफाज, उसके चारों तरफ क्या है? दे हैव गॉट अ प्रोटीन कोट। दिस इज अ प्रोटीन कोट एंड दिस प्रोटीन कोट इज कॉल्ड कैप्सिड। ये क्या है? प्रोटीन कोट। अब सोचो ये प्रोटीन कोट है और यहां पे है उसका स्पाइक, ये टेल शीथ है, ये स्पाइक है। ये स्पाइक से किसी बैक्टीरिया के ऊपर बैठते हैं एंड अपने पास जो उनके पास आरएनए है या डीएनए है, उसको ये स्पाइक से परफोरेट करने के बाद, इस यहां पे परफोरेट करने के बाद दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द डीएनए और आरएनए व्हाटएवर दे आर हैविंग। से दिस इज डीएनए दैट दे हैव गॉट। सो डीएनए को वो इंसर्ट कर देंगे बैक्टीरिया के अंदर। दिस इज बैक्टीरिया, दिस इज बैक्टीरिया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन। इस ट्रांसडक्शन प्रोसेस में बैक्टीरियोफाज के द्वारा डीएनए ट्रांसफर हो रहा है इन बैक्टीरिया। दिस इंफॉर्मेशन, ये जो ट्रांसडक्शन टेस्ट है, ये ट्रांसडक्शन किसने किया? डिस्कवर जिंडर एंड लीडरबर्ग। जिंडर एंड लीडरबर्ग। पर ये टेस्ट को क्लास 12 में पेज नंबर 101 and 102 old book, if you see there is an experiment of Hersey and Chase. Hersey and Chase experiment है। Hersey and Chase experiment is there. If you just have a close look, तो वहां पे एक बार प्रोटीन को, कैप्सिड, ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन को रेडियोएक्टिव S35 से लेबल्ड किया गया और देखा गया सेल के अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर S35 पहुंचा नहीं। क्यों? सल्फर 35 रेडियोएक्टिव। क्यों? क्योंकि प्रोटीन कभी सेल के अंदर नहीं जाता है। कौन जाता है? डीएनए। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने? नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में P32 फास्फोरस 32 रेडियोएक्टिव मटेरियल डीएनए के अंदर लेबल कर दिया, रेडियोएक्टिव लेबल। तो देखा बैक्टीरिया के अंदर P32 आ गया। P32 आ गया, दैट मींस इट इज द डीएनए व्हिच इज द मेन जेनेटिक मटेरियल। ये अप्रूवल हो गया 1964 में बाय हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट।
So what is transduction? Transduction says when a part of the bacterial DNA gets transferred from one bacterium to the other, but by the help of virus or bacteriophage. So that was about the sexual reproduction. Okay, class 12 में और भी ज़्यादा जानेंगे. So let's get into the next and the last topic, and that is called heterotrophic bacteria. Heterotrophic bacteria मतलब pathogenic bacteria. प्लांट में कुछ है, कुछ एनिमल्स में है. आपके बुक में प्लांट में कॉज करते हैं एक बैक्टीरिया, उसका नाम है साइट्रस कैंकर. द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज साइट्रस कैंकर एंड इट क्रिएट्स व्हाट? इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन साइट्रस फ्रूट. साइट्रस फ्रूट में ये इन्फेक्ट करते हैं, साइट्रस फ्रूट में. और द डिजीज इज कॉल्ड साइट्रस कैंकर एंड इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया Xanthomonas citri. ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है इन साइट्रस फ्रूट एंड द डिजीज इज कॉल्ड साइट्रस कैंकर. ओके, और कॉजिंग एजेंट कौन है? बैक्टीरिया का नाम क्या है? Xanthomonas citri. Fine. So this is a harmful bacteria, pathogenic bacteria. Now this, in case of animals, there are a lot of the other organisms. Lot of the causative organisms are there. जैसे एनिमल में डिजीज कॉजिंग जो नॉर्मली बहुत कॉमन है वो क्या है? टाइफॉइड. आप जानते हो टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी. देन देयर इज अ कॉलेरा. आप वेरी कॉमन है ये. कॉलेरा इज विब्रियो कॉलेरी. देन देयर इज न्यूमोनिया. अभी बात किया था. वी हैव टॉक्ड अबाउट न्यूमोनिया. Pneumonia is caused by Diplococcus or Streptococcus. Diplococcus या Streptococcus pneumoniae. Fine. Then there is diphtheria. Diphtheria is caused by Corynebacterium diphtheriae. जब हम आपको ये पढ़ा रहे हैं क्लास 12 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, the name of this diphtheria in Hindi is called galghotu. ये इंपॉर्टेंट है. क्लास 12 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में यही पढ़ोगे आप. डिप्थेरिया. pertussis एक और एक डिजीज है which is called as whooping cough. And this whooping cough is also called as, in Hindi it is called as kali khansi. Is there again in class 12 book under human health and disease. Pertussis is caused by Bordetella pertussis. Then there's another disease which is called as tetanus. It is caused by Clostridium tetani. Okay. Then there is disease called leprosy, which is also called as Kushtrog. It is again there in class 12 book, Human Health and Disease. Kushtrog is caused by Mycobacterium leprae. Then there is tuberculosis, very common. Tuberculosis. Fine. Tuberculosis caused by again Mycobacterium tuberculosis. So my dear students, keep your copy on और ये लिखते रहो. इसको याद करना पड़ेगा. Mycobacterium tuberculosis. Fine. There is some disease which is caused by food poisoning और वो harmful है, named botulism. क्या नाम है? Botulism. It is caused by Clostridium botulinum. It is caused, और ये फूड पॉइजनिंग है, canned food poisoning. Okay, यहां पे there is a type of component produced by this bacteria named है botulinum. Poison का नाम क्या है? Botulinum. This is the name of the chemical produced inside canned food. अगर canned food में थोड़ा सा भी perforation रह जाए और air अंदर चला जाए, so ultimately it is going to make a huge problem.
Clostridium botulinum, it can cause food poisoning, canned food poisoning. Then in our stomach, sometimes there is a gastric ulcer. Gastric ulcer is also caused by a bacteria named Helicobacter pylori. Helicobacter pylori is the name of the bacteria. Fine. There is a disease which is caused by bacteria named anthrax. Is a highly, ये anthrax disease का जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का हेल्प लेकर बायोलॉजिकल वारफेयर जो बैंड है, ये बायोलॉजिकल वारफेयर में हम यूज कर सकते हैं. Bacillus anthracis. Fine. So these are the different types of heterotrophic bacteria which can cause disease. Now some useful bacteria. जो यूजफुल बैक्टीरिया डे टू डे आपके घर में लगता है, उसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस. इससे क्या बनाते हो आप? इससे आप कर्ड बनाते हो. यू मेक कर्ड. फाइन. ये कर्ड बनाते हो. आप घर में विनेगर बनाते हो. विनेगर आप बना सकते हो बाय द हेल्प ऑफ एसिटोबैक्टर एसिटी. यू कैन मेक व्हाट? विनेगर. इन इंडस्ट्रियल स्केल आप बना सकते हो विनेगर. So, ये useful bacteria है. One of the useful bacteria present in our intestine is called Escherichia coli. It is there in our intestine and it's a very good bacteria. Fine. And yes, there are some bacteria which you are going to study later in class 12. उसका नाम है Agrobacterium tumefaciens. ये बायोटेक्नोलॉजी में लगेगा. And it is having, ये Agrobacterium tumefaciens से जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं हम. क्या कर सकते हैं? We can go for genetic engineering in plants. Though ये Agrobacterium tumefaciens, they also can make two types of disease. One is called crown gall disease in apple and rose. And rose plant. Okay, crown gall disease. But it is also used as a genetical tool for GM plants, genetically modified plants. So these are some of the basics of it. And just now we have talked about Pseudomonas putida, which was used in Gulf War. Gulf War में यूज किया गया था because they feed on crude oil, they feed on petroleum product, and we have used this in 1991 Gulf War में हमने इसको यूज करके क्या किया था? नेचुरली पानी से उस क्रूड ऑयल को हम नेचुरली निकाल दिए थे. We have got this particular bacteria, then we have made it in lab and we have created that in the sea where the oil spillage occurred. So very, very important. So these are the basic idea about bacteria. और याद रहे, we have tried to complete every other informations for you. एक point I think I am missing is about actinomycetes. Last video में last term we have used as actinomycetes. Actinomycetes is a type of bacteria wherefrom we have been able to extract one antibiotic named streptomycin. क्या नाम है? Streptomycin. These are the informations about kingdom Monera. Write down every other notes. It's going to help you out. And after this whole part 1 of Monera and part 2 Monera you have already, if you have completed, then sit for the test on only Monera, last 30 years question paper. Try to solve, and if you get stuck, just inform me what are the questions you are not being able to answer it. All the very best. See you in the very next video.